Very good morning students. Today we will cover DG class for your geography chapter 1 India size and location. Fine, हम already study कर चुके हैं. ठीक है, जहाँ हमने इंडिया की एक्सटेंट देखी थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने देखा था कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं. ठीक है, जोग्राफिकल एरिया हमने पढ़ा, साइज लोकेशन वगैरह के बारे में. तो आज जो है हम इसके डीजी क्लास को कवर करते हैं. ठीक है. India is a vast country that enjoys a strategic location in the world. Both its size and location have contributed to making India one of the most progressive countries in the world. Our country, India, is located in the northern hemisphere. The mainland extends between the latitudes 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, and the longitudes 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. The Tropic of Cancer at 23 degrees 30 minutes north divides India almost into two halves. With an area of 3.28 million square kilometers, the Indian landmass covers about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the world's 7th largest country after Russia, Canada, USA, China, Brazil, and Australia. Standing tall in the northeast, north, and northwest are the mountains. Broad at the north, India tapers at about 22 degrees north latitude towards south. Here, the Indian subcontinent divides the northern part of the Indian Ocean into the Arabian Sea and the Bay of Bengal. To the southeast of India lie the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal, and to the southwest of India lie the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. India's land boundary is 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the Indian mainland, along with the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers. But the latitudinal and longitudinal extents of the mainland are both about 30 degrees. And yet, the east-west extent appears smaller than the north-south extent. In fact, the distance between the east and west of India is so much that there is a time lag of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. However, the standard meridian of India passes through 82 degrees 30 minutes east longitude through Mirzapur in Uttar Pradesh. The time along this longitude is considered as a standard time for the whole country. Did you know that the longitude difference between Mirzapur and the prime meridian at 0 degrees longitude in Greenwich translates
to an exact time difference of 5 hours and 30 minutes. ये स्टूडेंट्स आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस बना के अपने नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रन हो रहे हैं, एरियाज पूछे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, और जो हमारा आईएसटी है, इन सब के शॉर्ट क्वेश्चंस बना के आपको अपने असाइनमेंट में, आज के असाइनमेंट में करने हैं। क्लियर? ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारी कंट्री के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है। ये सब आपको जो है पता होने चाहिए। लोकेशन ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ की कौन सी लोकेशन में इंडिया आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता चल गई, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? टोटल एरिया कितना है, आइलैंड्स कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है, टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की, यानी कि समुद्री तट की कितनी लेंथ है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने किसको माना हुआ है? जो कि मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। वो हमारी क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब है कि इसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ। इस लाइन पे जो मेरिडियन पास होती है लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारी क्या है? हमारी पूरी कंट्री के टाइम को डिसाइड करती है कि पूरी कंट्री में जो है टाइम इसी लॉन्गिट्यूड पे जो होगा वही हम अपनी पूरी कंट्री के लिए मानेंगे। टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनिच टाइम क्या है? हम ग्रीनिच टाइम से कितना आगे हैं? ग्रीनिच क्या है? 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री से हम कितना आगे हैं? 5 आवर्स एंड 30 मिनट, 5.5 घंटे हम ग्रीनिच टाइम से जो है आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। You would have heard the proverb, love thy neighbor. Similarly, to prosper in today's world, countries need to have friendly relations with their neighbors. Let's know more about our country's neighbors. 9 countries are considered to be India's closest neighbors. Pakistan and Afghanistan are the neighboring countries of India in the west. Pakistan is bordered by India on one side. The meaning of Pakistan is sacred land. Pakistan
has a dense network of canals and is therefore known as the country of canals. Moving on to Afghanistan. India and Afghanistan have only a small length of common border. Afghan refers to the founders of the nation, and Stan refers to land. Afghanistan is a landlocked and mountainous country. On the northern side, India shares its borders with China, Nepal, and Bhutan. China is bordered by India on one side. The name China is derived from the name of Qin dynasty, which ruled the country in the past. China is the fourth largest country in the world in terms of geographical area. India's next neighbor, Nepal, is bound by India on three sides. It is a landlocked country. The world's tallest mountain, Mount Everest, is located in this country. Moving on to the next neighbor, Bhutan. It is bordered by India on all sides except in the northern direction. The name Bhutan is derived from the Indian word Bhodana, which means the edge of Tibet. Bhutan is also a landlocked country. ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इन तीनों कंट्रीज को क्या बताया, ये क्या है, लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जिसकी चारों बॉर्डर्स यानी कि सभी बॉर्डर्स जो हैं लैंड से घिरी हुई हो, यानी कि चारों तरफ जो है वो किसी न किसी कंट्री की बॉर्डर टच हो रही हो, समुद्र ना हो, पानी ना हो, ठीक है। ऐसी कंट्री जिसके आसपास सिर्फ लैंड हो, यानी कि सारे बॉर्डर्स जो हैं सिर्फ लैंड से कवर्ड हो, ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्रीज, ठीक है। लैंड से लॉक हुई हुई कंट्री है, यानी कि जैसे इंडिया है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक कोस्ट लाइन है, काफ़ी सारा हिस्सा जो है समुद्र से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर से कनेक्टेड है। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो कि वाटर से कनेक्टेड नहीं होती, किसी सी से कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं लैंडलॉक कंट्रीज। अब आप जैसे भूटान को देखेंगे, ये पानी से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है ना, है ना। तो ये क्या है, इधर क्या है, इंडिया, ऊपर है चाइना, यानी कि इसके चारों बॉर्डर्स जो हैं सभी तरफ से जो है ये क्या है, दूसरी कंट्रीज के बॉर्डर से टच होते हैं इसके बॉर्डर्स, यानी कि ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्रीज। उसी तरह हमने नेपाल को देखा, इधर क्या है, इंडिया, और दूसरा बॉर्डर इसका टच होता है चाइना से, तो ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। उसी तरह इधर जो हमने देखा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगेन एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इसका भी कोई भी जो है बॉर्डर पानी से टच नहीं हो रहा है, सिर्फ लैंड से टच हो रहा है। इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, दोनों साइड से। तो और क्या है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जिनके बॉर्डर जो है दूसरी कंट्रीज के साथ चारों तरफ से टच हो रहे हो, पानी से कहीं से भी टच नहीं हो रहे, वाटर का कोई बाउंड्री नहीं होती है, ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं लैंडलॉक कंट्रीज। In the east, Myanmar and Bangladesh are India's neighboring countries. Myanmar is bounded by India on only one side. Myanmar was formerly known as Burma. It is one of the least developed countries of the world. Myanmar is known as the land of mountains and rivers. India's next neighbor, Bangladesh, is bordered by India on all sides except for a small border which it shares with Myanmar. The name Bangladesh means Bengal country. The world's longest beach is in Bangladesh.
On the south, the closest neighbors of India are Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka means a beautiful island. The country acts as a strategic naval link between Southeast Asia and Southwest Asia. Sri Lanka is separated from India by the Pok Strait, and Sri Lanka and India are linked by a chain of sandy islands called the Adams Bridge. India's next neighbor, Maldives, is made up of around 1,190 tiny islands. Maldives is also known as an island kingdom. India, along with Pakistan. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और वर्ड आया है स्ट्रेट। यहाँ हमने देखा ना कि इंडिया और श्रीलंका जो है एक नैरो पैसेज से जो है डिफरेंस होता है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये छोटा सा जो पानी का रास्ता है, इससे सेपरेट होता है दोनों कंट्रीज। यहाँ आपको दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो एक ऐसा पानी का रास्ता, देखो स्ट्रेट किसको हम बोल रहे हैं, जो दो साइड से लैंड से घिरा हुआ हो और बीच में से छोटा सा पानी का हिस्सा जा रहा हो, उस छोटे से पानी के हिस्से को हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेट थी? पॉक स्ट्रेट। अभी बताया ना कि इंडिया और श्रीलंका जो दोनों हैं एक दूसरे से किससे सेपरेट होते हैं? पॉक स्ट्रेट से, ठीक है। PALK, पॉक स्ट्रेट, ठीक है। तो एस स्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? ऐसा जो है पानी का हिस्सा जो कि दो साइड से लैंड से घिरा हुआ हो, एक छोटा सा पानी का हिस्सा। देखो ये जो हिस्सा है ना छोटा सा बिल्कुल, और इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, ठीक है। तो जो दो लैंड को सेपरेट करे पानी का वो हिस्सा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अब इस छोटे से पानी के हिस्से ने श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो पानी का वो हिस्सा जो दो लैंड को, दो लैंड मास को जो है अलग करता है, उनके बीच में से गुजर जाता है, वो छोटा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। Bangladesh, Nepal and Bhutan forms a single entity and is therefore called the Indian subcontinent. The South Asian Association for Regional Cooperation, or SARC, was established to promote regional cooperation and development among its member countries. The members of this association are Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, and India. तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हर एक नेबर के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अफगानिस्तान कहाँ है? वेस्ट में हमारा नेबर है, ठीक है। वेरी स्मॉल कॉमन बॉर्डर, यहाँ पे भी देखो इतना छोटा सा ये बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करता है। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड एंड माउंटेनियस कंट्री। लैंडलॉक्ड है, अभी हमने देखा था, और क्या है? एक माउंटेनियस, पहाड़ों से बनी हुई कंट्री है,
ठीक है, फिर हम देखते हैं चाइना को। इज इंडियाज नेबर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इंडिया की नेबर है। इज बॉर्डर्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड पे इंडिया से बॉर्डर्ड है ये कंट्री। और क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जितना इसका पूरा क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया है, उस हिसाब से ये वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। क्लियर। पाकिस्तान क्या है, ये वेस्ट में इंडिया का नेबर है और वन साइड पे इंडिया से बॉर्डर्ड है और डेंस नेटवर्क है कैनाल्स का। ठीक है, और नेपाल को देखते हैं। ये है नॉर्थ में, अगेन नॉर्थ में हमारा जो है नेबर है, फेमस किसके लिए है, हिमालयन माउंटेन रेंज के लिए। ठीक है, वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। ठीक है, और अगेन ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान, भूटान भी हमारा नॉर्थ में नेबर है और क्या है, ऑल साइड्स, सभी साइड से एक्सेप्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन, नॉर्थ में तो ये चाइना से बॉर्डर्ड है, बाकी सारे डायरेक्शन में जो ये इंडिया से बॉर्डर्ड है। और ये भी क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, बांग्लादेश, ये क्या है, ईस्ट में हमारा नेबर है। ठीक है, ये भी सभी तरफ से जो है इंडिया से घिरा हुआ है एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल बॉर्डर, स्मॉल बॉर्डर जो है छोड़ के बाकी सारा इंडिया से बॉर्डर्ड है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच कहाँ पर है, बांग्लादेश में। म्यांमार, ये हमारा ईस्ट का नेबर है और सिर्फ वन साइड से इंडिया से बॉर्डर्ड है। वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड, यानी कि सबसे कम डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड की, इज नोन एज द लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। ठीक है, माउंटेन्स और रिवर्स का देश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे जो है ये नेबर्स हैं। अब मॉलडीव्स देख लेते हैं, ये है साउथ में हमारा नेबर है और जो है 1190 टाइनी आइलैंड से मिलके बना, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड किंगडम भी बोलते हैं। ठीक, श्रीलंका देखते हैं, साउथ में हमारा जो है नेबर है, इज ए स्ट्रेटेजिक नेवल लिंक बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि स्ट्रेटेजिक लिंक प्रोवाइड करता है कहाँ पे, नवल लेक, यानी कि समुद्री मार्ग प्रोवाइड करता है दोनों ही साउथ ईस्ट एशिया को और साउथ वेस्ट एशिया में। इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पॉक स्ट्रेट, अभी हमने देखा था छोटी सी ये स्ट्रेट है पॉक स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, उससे ये इंडिया से सेपरेट होता है। इज लिंक्ड विद इंडिया बाय अ चेन ऑफ सैंडी आइलैंड कॉल्ड एडम्स ब्रिज, ये जो छोटे छोटे एडम ब्रिज आते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो छोटे छोटे सैंडी आइलैंड्स हैं, चेन है एक बनी हुई इनकी। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स की, तो उसको हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, ये तो ये सब हमने क्या देखे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर, ये सारी क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। क्लियर, तो ये आपकी डीजी क्लास जो है कंप्लीट होती है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के लिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन।